has finalized recommendations for revival of MSME sector. The recommendation will be released and submitted to this event today. This will be in addition to the suggestions are already submitted to the ministry a few weeks back. At this crucial juncture, the institute has taken various measures to support government and industry. In addition to MSME revival recommendations, I wish to inform that Institute has interacted with the Indian Council of Medical Research and has given suggestions relating to costing of COVID-19 tests, as well as appropriate costing techniques for coding and costing of diseases. We have issued an advisory to the corporate how to treat the cost and the expenses incurred during the lockdown period and the COVID-19 effect period, whether these expenses should form part of the cost of the product or not, whether to be recovered from the customer or not. Detailed advisory has been given to the corporates. We have also done the impact analysis of COVID-19 on industry as submitted to the Ministry of Finance. We have also supported the corporate by releasing the board reporting framework post COVID-19, that is a corporate governance perspective, how the board of directors will analyze the impact, how they will plan their future. We have come out with this document as submitted to SEBI, MSCI, and the various corporate for their thing to be used by the board of directors for their convenience. We will be very shortly releasing the document rebooting the economy post-lockdown of Gandhi India. Honorable Mr. Sir, today we are taking key initiatives. One is releasing comments for revival of MSME. The suggestions, the recommendation include revival of labor-intensive sectors on priority basis, recommendation to develop consolidated logistic and distributive channels and thus improve market facilitation services, suggestion for group storage facilities with insurance, suggestions for technological, financial, and admin support to promote import substitution, suggestions for utilization of sources of India Post for deliveries to encourage and support MSME online trade, suggestion to explore fresh business idea to facilitate sustained growth, suggestion for relief in respect of tax law, both direct and indirect. The total 25 recommendations have been listed and are being submitted today in addition to the recommendation already listed. So the second initiative is that the institute announces the launching of MSME series, which will be a web interaction series with the experts by the institute in the name of MSME Restart, Run and Sustain. The series will start from 14th of May 2020 for web interaction, and it will continue for 5 more weeks to support the MSME across the country. So the third initiatives. We, in our recommendation, have included that there should be consultancy services for MSME through the Institute of Cost Accountants of India for revival strategies. Sir, we hereby offer our services to MSME units to help desk across major cities in India. We have finalized 36 cities in the first phase, 36 major cities in the first phase to provide help desk besides having a central team at the national level. Sir, on behalf of the Institute, pool of experts will provide, monitor and support MSME by way of providing suggestions and strategies at central level. MSME enterprises will be able to take the support of cost accountant without any fees, without any charge. Identified experts in major cities shall coordinate and provide necessary support at local level and the regional level across India. I, as a president of the Institute, in the presence of Honorable Minister, feel privileged to declare the launch of help desk in 36 major cities across India in the first phase by the Institute of Cost Accountants of India. So these help desks would act as, number one, as a business partner, as adding real measurable amount of profitability, helping the management of a MSME for efficient managing of working capital, managing of cash flows. This cost accountant will help creating meaningful analysis to understand customer profitability, product and service profitability. The cost accountant will help the management to reduce pricing of product and service. Cost accountant will help the organization in business respect. So keeping in the broad measures in mind, the Institute thereby submits 25-point recommendation today, which may be examined and implemented by the government. I sincerely hope that the recommendation of the Institute of Cost Accountants of India will prove to be very useful for the government to bring back MSME on track quickly post-lockdown. With this word, I conclude. Thank you for the Honorable Minister for being with us. I now request Neeraj Joshi to host of the event to take over. Neeraj, can unmute and take over.
Thank you, CMA Balwinder Singh sir, for that brief but to the point address. I now request our esteemed guest, Honorable Shri Nitin Gadkari ji, Minister of MSME and Road Transport and Highways, to address our members and to guide them. Please, sir. एसोसिएशन के सभी सम्मानीय पदाधिकारीगण और जो मेरी आवाज सुन रहे हैं ऐसे सभी भाई और बहनों, सबसे पहले मेरे क्लोज परिवार में आज एक डेथ होने के कारण उसके अंत्य संस्कार के लिए मुझे नागपुर से 40 किलोमीटर दूर जाना पड़ा और उससे देरी हुई, इसलिए मैं आज 1 घंटा देरी आपके कार्यक्रम के लिए हुई है, इसलिए आप सब लोगों से क्षमा मांगता हूँ। वैसे जनरली जो मैं अपनी बात कहता हूँ वो यूट्यूब पर काफी जगह पर आई है, मैं उसके रिपीटेशन को टालता हूँ। जहां तक मुझे आपको कुछ बातों के बारे में मुझे आपकी भी मदद चाहिए और कुछ बातों के लिए मुझे ऐसा लगता है कि हम ये गवर्नमेंट सिस्टम जो है, हमारी बैंकिंग सिस्टम, गवर्नमेंट सिस्टम, टैक्स सिस्टम, ये जिस प्रकार से एमएसएमई को डील कर रही है, इसमें आप जैसे एक्सपर्ट लोग इसका अध्ययन करके इसका क्या क्या उसमें मार्ग निकाल सकते हैं, अगर उसमें कुछ बातें अगर आगे आती है तो थोड़ा सा मुझे लगता है निश्चित रूप से इसका उपयोग होगा, जिसके ऊपर आपने काफी इंटरेक्शन एमएसएमई के साथ किया है। पहला पॉइंट ये है कि एमएसएमई को जो लोन सैंक्शन होता है बैंक से, उसमें 75% हम वो इंश्योरेंस ट्रस्ट में पैसा जमा करते हैं। जैसे अभी 1 लाख करोड़ का लोन अगर बैंक ने दिया एमएसएमई को हमारे स्कीम के अंतर्गत, तो 75% तो हम इंश्योर कर लेते हैं, बाद में बैंक देती है, तो 25% ही बैंक को उनसे कोलैटरल लेना है, 75% हम करते हैं और उसके लिए 1500 करोड़ रुपए हम इंश्योरेंस का प्रीमियम सरकार की तरफ से भरते हैं। फिर हमने कहा कि आप 1 घंटे में 159 मिनट में लोन सैंक्शन करेंगे। सैंक्शन करने के बाद होता ऐसा है कि सैंक्शन लेटर प्रिंसिपल सैंक्शन का देते हैं और बाद में डिसबर्समेंट नहीं करते, वो भी काफी उसमें दिक्कतें जाती है। तीसरी बात जो है कि एमएसएमई के मार्केटिंग के लिए जैसे चाइना में अलीबाबा पोर्टल बना, वैसा हम लोग एक चाह रहे थे कि पोर्टल बना है, पर वो अभी तक हम नहीं बना पाए, उसकी कोशिश कर रहे हैं। इस चौथी बात जो इम्पोर्टेंट है, जो मुझे लगती है, जो मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ आप जैसा, क्या हम एमएसएमई का रेटिंग कर सकते हैं? जो एक्सपोर्ट कर रही है, जिनका 3 साल का टर्नओवर है, टैक्स भरा हुआ है, उनको तो हमको ऐसी कोई आईटी का उपयोग करके सिस्टम बनाए कि ये पैरामीटर्स हो गए तो इतना लोन सैंक्शन कर सकते हैं, ये तो इतना दे सकते हैं। उसका रेटिंग अगर हो जाएगा तो एमएसएमई में कंपटीशन होगी कि हम लोग रेटिंग हमारा बड़ा है ताकि हमको सुविधाएं जल्दी जल्दी मिले। अभी जैसे उदाहरण के लिए गवर्नमेंट टेंडर सप्लाई में उनको बैंक गारंटी देनी पड़ती है। अब हमारे यहाँ रोड कंस्ट्रक्शन में 2% ऑफ द कॉस्ट की बैंक गारंटी देनी पड़ती है। अब मैं आपको क्या बताऊं, हमारे 100 प्रोजेक्ट अटके हुए हैं क्योंकि 2% की बैंक गारंटी एक साल भर नहीं मिल पा रही है, तो बैंक की अपनी कुछ दिक्कतें होगी। तो ये एमएसएमई को छोटी छोटी बैंक गारंटी के लिए वो पर डिपॉजिट मांगते हैं। अब मैं ये मानता हूँ कि समझो जिसका AAA रेटिंग हो, मैं 2 बातें आपको कहूंगा। एक तो छोटे छोटे सर्विस इंडस्ट्री में काम करने वाले लोग हो, फिर एग्रो एमएसएमई हो, अभी फिशिंग एमएसएमई, फॉरेस्ट बेस्ड एमएसएमई, गांव गरीब मजदूर किसान को कंसिडर करके हुए, अर्बन एरिया में हो पर ग्रामीण में भी हो, ट्राइबल एरिया में हो, और इस प्रकार के सभी सर्विस सेक्टर सब हमारे यहाँ कवर होंगे, इसलिए उनको कोई प्रोत्साहन मिलेगा तो होगा। जैसे मेरिट में पास हुए लड़के को जैसे पहले एडमिशन मिलती है तो लोग कोशिश करते हैं, वैसे एमएसएमई में जो एक्सपोर्ट करते हैं, जिनका रेटिंग अच्छा है, वो कैपिटल मार्केट का फंड उनको मिला। अभी वो फंड ऑफ फंड हम लोग 10,000 करोड़ का कर रहे हैं, जो सिरा कमेटी का रिपोर्ट था, और उसमें से हम लोग अगर वो कैपिटल मार्केट में जाकर अगर इक्विटी खड़ी कर रहे हैं तो 15% हम उसके शेयर लेंगे। अब ये फंड को हम लोग उसका 4 साल के बाद बेच देंगे। तो एमएसएमई स्टॉक एक्सचेंज की बात आई कि एग्जिस्टिंग स्टॉक एक्सचेंज में एमएसएमई का भी एक स्टॉक एक्सचेंज करके पार्ट हो, और जहां पब्लिक से डायरेक्ट कैपिटल इन्वेस्टमेंट आए। अब उदाहरण के लिए समझो 2-3 लाख 4 लाख एमएसएमई रेटिंग में अच्छी है, प्रॉफिट में अच्छी है और एक्सपोर्ट में अच्छी है, वो अगर कैपिटल मार्केट में चली जाएगी तो उतना बैंक का भार कम हो जाएगा। तो पहली बात तो ऐसा है कि इसमें आप लोगों को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि चाइना में एक है कि 3 मिनट में लोन डिसबर्स भी करते हैं, उन्होंने ऐसा सॉफ्टवेयर डेवलप किया। इतने नियम और इतनी जटिलता है
और इतने चेक एंड काउंटर चेक होते हैं कि कोई काम करने वाला आदमी थक जाता है। अभी मैंने कहा कि एमएसएमई में कॉस्टिंग का इम्पोर्टेंट है कि लेबर कॉस्ट कम हो, लॉजिस्टिक कॉस्ट कम हो, पावर कॉस्ट कम हो, रॉ मटेरियल कॉस्ट कम हो, तब प्रोडक्शन का कैपिटल कॉस्ट भी आज बहुत है। अभी एनबीएफसी हमारे यहाँ बनी हुई है, आपको पता होगा कि अभी हमने कहा कि भाई नेशनलाइज बैंकों के साथ और सिडबी के साथ एनबीएफसी भी एमएसएमई के स्कीम में अब फाइनेंस कर सकती है, डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक भी कर सकती है, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक भी कर सकती है, ताकि हमारा क्षेत्र बढ़े और वहां हम जाए और जो ऐसा करना चाहते हैं उनको मदद करें। अब एनबीएफसी का भी इतना अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का जो टर्नओवर डाउन हुआ क्योंकि एनबीएफसी नहीं फाइनेंस कर पाई, वो एक कारण मेजोरिटी वो भी था। तो हम लोग एनबीएफसी को भी कोई फाइनेंस करें, तो धीरे धीरे कोऑपरेटिव बैंक, डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, एनबीएफसीज, इनको भी हमारे साथ लाकर और आईटी बेस्ड कोई सिस्टम तैयार करके हम अगर रेटिंग भी करके फिर अगर उनको तुरंत के तुरंत निर्णय करें और रेट टैपिज्म से मुक्ति दे। अभी एनसीएलटी बनी, अब एनसीएलटी भी कोर्ट जैसा काम कर रही है। देखो मैं आपको बता दूं, मैं बहुत बार सरकार में साफ कह चुका हूं कि जिन लोगों को 1 तारीख को तनख्वाह मिलता है उनको टाइम का कॉस्ट क्या होती है कभी पता ही नहीं है। 3-3 महीने फाइल दबके रहती है। तो आप ये ट्रांसपेरेंसी, टाइम बाउंड, रिजल्ट ओरिएंटेड एंड करप्शन फ्री ऐसी आईटी सिस्टम बेस हमारा नेटवर्क अगर खड़ा होता है और उसमें आईटी बेस्ड एनालिसिस होके ही हमको उनकी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस ध्यान में आएंगे तो ह्यूमन एरर कम होगी। और इसलिए एमएसएमई से अभी विलेज में इंडस्ट्री डालना, अभी मैं वीसी में था तो वो फायर ब्रिगेड का बोलता है इतनी जगह छोड़ो, तो इसने सैंक्शन कर दिया। अब क्यों नहीं हम ऐसी पॉलिसी बनाए कि आप ये फायर ब्रिगेड का नाम ये है, इसके आप ये गांव है, ऐसा एरिया बना सकते हैं, इतनी जगह छोड़नी पड़ेगी, इतनी पार्किंग के लिए छोड़नी पड़ेगी, इतना अगर पावर होगा तो इतना, ऐसा करके एक पूरा दो, इतना चीज तुमने किया तुम्हारा सैंक्शन, 1 घंटे के अंदर सैंक्शन लेके चले जाओ, आना ही नहीं कुछ। तो इस टाइप को जैसे ये परमिटेशन कॉम्बिनेशन वाली जो सिस्टम होती है उस टाइप के सिस्टम में इतने जवाब दो, क्लियरेंस लेके जाओ, इतने मार्क मिल गया, आपका हो गया। तो कहीं ना कहीं ये ईयर टू ईयर ऐसे ही चलता है एंड देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन लेटर एंड स्पिरिट। अभी मैं ये बीओटी और पीपीपी का पहला रोड मैंने शुरू किया था मुंबई में, और ये फिर मुंबई पूरा एक तब बना। तो पीपीपी में यहाँ के एजी ऑफिस ने मुझे एक बार बुलाया था नागपुर में, तो उन्होंने एक सीरियस प्रश्न किया था कि जिस रोड की कॉस्ट 10 करोड़ है फॉर एग्जाम्पल, उसको पेमेंट हुआ है 19 करोड़ का 10 साल में, तो ये कैसे जस्टिफाई होगा। अब मैंने कहा कि ये रोड उसने बैंक से कर्जा लिया है, अगर आप कैश पेमेंट में कार लेंगे तो आपको 7 लाख रुपए में मिलेगी, और वही अगर आपने उसको 10 साल में पैसा वापस किया तो ब्याज लगकर उस कार की कीमत वो 5-7 लाख रुपए बढ़ जाएगी, 10 लाख बढ़ेगी। तो ये रोड हमने जैसे कार इंस्टॉलमेंट पे ली या घर लिया वैसा रोड लिया है, तो ये इसमें ये इंटरेस्ट बढ़ेगा। अब उसमें ही अगर उन्होंने ऑब्जेक्शन लगा दिए और सीएजी के फिर प्यारे के प्यारे बनेंगे, तो हमारी जो डेवलपमेंट से रिलेटेड इश्यूज है उसके बारे में मॉडर्न मैनेजमेंट सिस्टम वर्ल्ड में सक्सेसफुल प्रैक्टिसेस कहाँ है और वर्ल्ड की सक्सेसफुल प्रैक्टिसेस का उपयोग करके हमारे देश के सिस्टम में वो कैसी आ सकती है, और उससे हमारी सिस्टम ट्रांसपेरेंट, टाइम बाउंड, रिजल्ट ओरिएंटेड और ई गवर्नेंस के साथ पूरी चलती। तो मुझे लगता है कि अब इसमें काफी बातों में जो डिले होता है, रेटेपिज्म होता है, हर काम के लिए करप्शन होता है, तकलीफ देते हैं लोग, इससे भी लोगों में हमारी इन्वेस्टमेंट पर परिणाम होता है, बिजनेस पर परिणाम होता है। तो हम इसमें रेटिंग करना चाहते थे, बीच में कुछ काम हमारे मिनिस्टर में शुरू हुआ है, और ये रेटिंग करने के बाद समझ हम कहेंगे कि जिसका रेटिंग ये प्लस ए है उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको तुरंत फटाफट ये काम आपको करना पड़ेगा। तो ये क्या होता है कि थोड़ा सा इसमें हम कैसा करें। अभी ये पेमेंट की बात है, आपको अभी भी हम इसका समाधान नहीं ढूंढ पाए कि अब अमाउंट के बारे में एक्सपेक्टेड है, मैं बोलता भी नहीं क्योंकि अच्छा नहीं है मीडिया के लिए।
अभी मुझे बताइए कि उनसे जो पैसा लेते हैं, हमने एक समाधान करके पोर्टल खोला, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, गवर्नमेंट अंडरटेकिंग, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, इन्होंने के पास ही एमएसएमई का अभी कितना पैसा पड़ा हुआ है। ये ऑक्सीजन जैसा है, वर्किंग कैपिटल नहीं मिलेगा तो वो काम कैसे कर पाएंगे। तो मैंने बीच में कहा था कि क्या इसके ऊपर कोई रोलिंग फंड जिसकी गारंटी गवर्नमेंट करे और जिसको सप्लाई हुआ है वो इंटरेस्ट कॉस्ट बेयर करे, और उसके उसके बैंक की गारंटी पर हम उसके अगेंस्ट उसको पैसा दे। ऐसा कोई फॉर्मूला बना सकते क्या? एक 50-1,000 करोड़ की हम गारंटी लेकर बैंक में ये सिस्टम लाकर ये पैसा रोलिंग फंड घूमता रहेगा और लोगों को पैसा मिलेगा। तो कहीं ना कहीं मैं आपसे ये उम्मीद करना चाहता हूँ कि कोविड के बाद हमको इस सेक्टर को एक तो तकलीफ हुई है, आज अड़चने भी है, कुछ समस्या भी है, और इसको हम लोग किस प्रकार से आगे ये सेक्टर बढ़े, रोजगार की निर्मित हो, उसके साथ साथ ग्रोथ रेट में इसका कंट्रीब्यूशन आए, और इनके बैंक गारंटी कॉन्ट्रैक्ट के लिए जैसे गवर्नमेंट टेंडर में भरने पड़ती है वहां से लेकर बैंक लोन तक, हम इसमें कैसी ट्रांसपेरेंट और आईटी बेस्ड सिस्टम लाए और इनका कॉस्टिंग कम कैसे करें। मैं आपको एक बात बता दूं, आप थोड़ा सा मुझे माफ करिए, ये आपके कॉस्टिंग में टाइम आता है कि नहीं मुझे मालूम नहीं। ये जो सरकारी बाबू पत्नी से भी ज्यादा फाइल से प्रेम करते हैं और फाइल दबा दबा कर बैठते हैं, तो कभी आप इसके लिए तो कॉस्टिंग कितना बदलता है। हमारे रोड में लैंड एक्विजिशन में डिले होने के कारण, यूटिलिटी शिफ्टिंग में डिले होने के कारण, फॉरेस्ट इन्वायरमेंट का लाइसेंस 2-2 साल नहीं देने के कारण हर साल 15,000 20,000 करोड़ का चुनाव लगाते तो मेरे डिपार्टमेंट में, और देते लाइसेंस तो उसके लिए 3-3 साल 4-4 साल लगाते, काम बंद पड़ता है, बैंक उसमें अकाउंट एनपी हो जाता है। तो ये जो टाइम नाम की बात है, आप लोगों ने तो ये कॉस्टिंग सब टाइम के कारण बदल होता है। आई डोंट नो वेदर टाइम का कोई आपके पास कंसेप्ट है कि नहीं। मैं कहता था आई लाइक पीपल हु कैन गेट द थिंग डन, आई लाइक पीपल हु कैन गेट द थिंग्स डन। यानी तुम जो निर्णय करना करो, निर्णय करो, और जो निर्णय नहीं करते, पेंडिंग रखते हैं, और उसके कारण टाइम के कारण जो नुकसान होता है, जो कॉस्ट बढ़ती है, वही तो बहुत बड़ी होती है। और इसलिए I like people, honest people who can take even wrong decisions, या उनके कुछ निर्णय गलत हुए तो सपोर्ट करने चाहिए। पर कभी कभी मुझे लगता है कि कभी ना कभी जो निर्णय नहीं करते, अब आप गवर्नमेंट का ये सब काम करते हो, निर्णय नहीं करते, ये कितने दिन फाइल को डिले करते हैं, यही तो कॉस्ट मैटर से रिलेटेड है। मैं तो एनएचआई में इसका अनुभव कर रहा हूँ, और जब मैं मंत्री बना तो 403 प्रोजेक्ट 3,85,000 करोड़ के ये एनपीए तक चले गए थे, और हमने 1-2 साल बैठकर कॉन्ट्रैक्टर बैंकर को बुला कर हमने रिजॉल्व करते हुए 70% प्रॉब्लम सॉल्व किए, 25% प्रोजेक्ट रिजेक्ट कर दिए, टर्मिनेट कर दिए, और करीब 3 लाख करोड़ से बैंकों को बचाया। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है डिले इन डिसीजन, और इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती। और ये जो डिले करते हैं, फाइल दबा दबा के 2-2 3-3 महीने बैठते हैं, और वो भी बड़े बड़े ऑफिसर होते हैं, मंत्री भी होते हैं। तो सिस्टम को आईटी का उपयोग करके एमएसएमई में एक तो इनका पेमेंट कैसे मिले, बाद में इनके क्लियरेंसेस इनको कैसे मिले, इनके डिसीजन समय पर कैसे हो, और आज के स्थिति में वर्किंग कैपिटल उनको आज देना पड़ेगा। अभी वो मांगे कि 3 महीने के लिए हमने उसको डिफर पेमेंट किया है, जो इंडस्ट्रियल लोन था, बाकी सब था। अब वो स्वाभाविक रूप से उनकी काफी मांगे है, वो सब मांगे तो हमने स्वीकार किया। आपका भी जो कुछ आएगा मुझे आएगा, मिनिस्ट्री में हर जगह एनालाइज कर रहे हैं, और हमने फाइनेंस मिनिस्ट्री को अपनी बात भेजी है। पर मैं जैसे आपको बता दो, रियल एस्टेट है, अब मुझे नहीं समझ में, मैं ना चार्टर अकाउंटेंट हूँ ना कॉस्ट अकाउंटेंट हूँ, मैं कॉमन मैन हूँ। मैंने उनको पूछा कि अगर इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रोजेक्ट, अगर लैंड एक्विजिशन कॉस्ट डालकर अगर उसका इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न निकालते हैं तो चाहिए 30 साल की मुदत। तो मैंने रिजर्व बैंक गवर्नर मेरे पास आए तो मैंने कहा आप उसको 30 साल का परमिशन दो, बोले हमारी आपत्ति नहीं है। अभी स्टेट बैंक ने समृद्धि महामार्ग में महाराष्ट्र को दिया है, वो दे सकते हैं। अभी इंफ्रास्ट्रक्चर को अगर 30 साल का लोन हुआ तो मेरे पास 10 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट है जो बैंकेबल है, जो टोल पर मैं दे सकता हूँ एस्क्रो अकाउंट खोलकर, तो उतना 10 लाख करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा होगा।
अभी जैसे रियल एस्टेट में हाउसिंग लोन है, वो 10 साल के ऊपर नहीं देते। अगर वो उसकी सर्विस अगर 25 साल की बाकी है और तो उसको आप, मुझे लगता है कि उसको अगर आपने 20 साल के लिए हाउसिंग लोन की लिमिट बढ़ाई तो आज रियल एस्टेट में 25, 30, 40% डिमांड बढ़ जाएगी, लेने वाले बढ़ेंगे। तो ये आज की स्थिति में मैं आपसे यही उम्मीद करता हूँ कि निश्चित रूप से आपका रोल बहुत इंपॉर्टेंट है और सिस्टम को ट्रांसपेरेंट, टाइम बाउंड, रिजल्ट ओरिएंटेड और फास्ट ट्रैक डिसीजन मेकिंग प्रोसेस और रिलेटेड इससे कॉस्टिंग के इशू रिलेशन में होने के कारण इसको आईटी। और अब मैं आपको और एक रिक्वेस्ट करूंगा कि मार्केटिंग से लेकर क्लियरेंसेस तक चाइना में क्या सिस्टम है। अभी मैंने मोटर व्हीकल एक्ट तैयार किया था, तो हमने अमेरिका का, जापान का, यूके का, अर्जेंटीना का, 5-7 देशों का ट्रैफिक एक्ट क्या है इसके लिए स्टडी किया। वर्ल्ड बैंक ने उनको मदद की और उनके देश में कैसा चल रहा है, उनके नाम से और हमारे यहाँ दुनिया भर का फर्क है। अब मैं ये नए नए फ्यूल लाता था तो हमारे लोग बोलते थे इनको टेस्टिंग करना पड़ेगा। अरे भाई, अपने देश में व्यवस्था ही नहीं है। फिर मैंने उनको कहा कि यूके और अमेरिका ने ये स्टैंडर्ड तय किए है, तो ये स्टैंडर्ड आप एक्सेप्ट करो, वैसे क्या वैसे है, जाके अध्ययन कर लो क्या है। तो अब तुम्हारे देश में अपनी ताकत ही नहीं, कितनी बड़ी लेबोरेटरी और कोई अभी तक हम गए ही नहीं, ये फ्यूल हमने यूज ही नहीं किया है। तो हम लोग अगर जो अच्छे देश है, जिनका रेटिंग अच्छा है, जिन्होंने काम अच्छा हुआ है, जिनका कोई प्रॉब्लम नहीं, उनके स्टैंडर्ड एक्सेप्ट करो। फिर मैंने वो एक्सेप्ट कर दिए, तो कारण गतिशीलता बढ़ी। अब इलेक्ट्रिक कार हमारे देश में हुई नहीं, बैटरी हुई नहीं, तो उसके स्टैंडर्ड कहां से, जिस देश में बनी है उनके स्टैंडर्ड को लेना पड़ेगा। अभी तक 2 साल लड़ता रहा ब्रॉड गेज मेट्रो, यानी अभी एग्जिस्टिंग रेलवे लाइन पर 4 डब्बे की एयर कंडीशन मेट्रो चलाना। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में उसकी कॉस्ट 5 करोड़ रुपए पर किलोमीटर है और मेट्रो हम बना रहे हैं उसकी 300 करोड़ रुपए पर किलोमीटर है। हम पूरे पब्लिक को इसमें ट्रांसफर कर सकते हैं, पर कन्विंस करते करते काफी समय चला जाता है। तो ऐसी बहुत सभी रोपवे, केबल कार, फर्निकुलर रेलवे, उसके मुझे स्टैंडर्ड्स और ये करते करते अभी तक मैं गुड़गांव से हमारा धोला कुआ बना रहा था कि लोग ऊपर के ऊपर चले जाए तो ट्रैफिक कम हो जाएगा, रोड का पोल्यूशन कम हो जाएगा। नहीं कर पाया, नहीं परमिशन मिली। रोड रेलवे सेफ्टी के लोग, उनको फॉरेन भेजा, ये भेजा। तो मुझे ऐसा लगता है कि टाइम पर डिसीजन होना और डिसीजन करने की प्रोसेस को आईटी बेस्ड प्लेटफॉर्म तैयार करके ये डिसीजन मेकिंग प्रोसेस ट्रांसपेरेंट, टाइम बाउंड, रिजल्ट ओरिएंटेड एंड करप्शन फ्री और इमीडिएट कैसी हो पाए, और इसमें जो काम नहीं कर रहे उनको हम आइडेंटिफाई कैसे कर पाए। अब मुझे लगता है कि इसमें थोड़ा सा मैं आपसे और एक सुझाव करूंगा कि चाइना में और अच्छे देशों में, 5-7 देशों में जो सिस्टम्स है वो अब प्रधानमंत्री जी भी करते कि लाइसेंस राज खत्म हो, रेड टैपिज्म खत्म हो। हम बहुत से निर्णय भी कर रहे हैं। अभी 3 सरकार ने अभी लेबर कानून में बदल किया है। अभी जापान के प्रधानमंत्री ने कहा है कि जापानी लोगों की जो भी इन्वेस्टमेंट चाइना में है, इंडस्ट्री है, वो आउट ऑफ चाइना जाएंगे, तो उनके लिए पैकेज दे रही है। पूरा वर्ल्ड चाइना से दूर होना चाहता है। फिर हमारे यहाँ ऐसी कौन सी सिस्टम है, इसमें अगर कोई दिक्कत है तो हम कैसे दूर कर सके, ताकि हमारे यहाँ लोग आसानी से आए और हमारा जो व्हील है हमारे डेवलपमेंट का, जो उद्योगों का, वो फास्ट घूमे, ताकि पर कैपिटा इनकम, जीडीपी बढ़े। अगर वो बढ़ेगा तो निश्चित रूप से हमको विश्वास है कि रोजगार बढ़ेगा, गरीबी दूर होगी। तो सिस्टम को कैसे करें, ये विषय जो है, मैं एक्चुअली आपका तो आपने जो दिया है डेलीगेशन, उसमें कुछ पॉइंट मेरे पास है, तो मैं, हमारे राजगोपाल शर्मा प्राइवेट सेक्रेटरी है, वो भी पूरा सुन रहा है, उस पर हम जरूर विचार करेंगे, आपसे चर्चा भी करेंगे। पर एज ए कॉस्ट अकाउंटेंट मुझे लगता है कि बाकी देशों की सक्सेसफुल प्रैक्टिस के आधार पर गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन में, बैंकिंग सिस्टम में, और कभी जैसा भी मैं आपको बैंक गारंटी, हमको ही तो 2-2 साल नहीं दे रहे एनएचआई में बैंक वाले, उसके कारण 1-1 साल प्रोजेक्ट डिले हो रहे हैं। तो छोटे लोगों को कहा देंगे। तो मैंने बीच में कहा कि इंश्योरेंस प्रोजेक्ट में, कुछ देशों में स्टेट बैंक चेयरमैन ने मुझे सुझाव दिया कि आप ये प्रोजेक्ट का इंश्योरेंस करिए। अभी हैदराबाद में उनके बैठे हैं,
उनके पास मैंने खुद फॉलोअप किया, मेरे लोगों को भेजा, उनसे वो अधिकार दिया फाइनेंस ने, वो फाइनेंस सेक्रेटरी से बात हुई, राजू कुमार थे, उन्होंने की। अब वो मुझे कहता है कि अब एक प्रोजेक्ट 1000 करोड़ का है, वो 2% की हम बैंक गारंटी मांगने के बजाय हम लोग उस कॉस्ट का प्रोजेक्ट इंश्योरेंस कर दे, कुछ कम ज्यादा हुआ तो उसका सिस्टम तैयार कर दे, एक तुरंत काम हो जाएगा। अदरवाइज 2 साल वो बैंक गारंटी के लिए घूमता, प्रोजेक्ट में वर्क ऑर्डर नहीं मिलता, काम नहीं शुरू होता। तो टोटल सिस्टम में टाइम, ये क्लॉज, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, ये प्रॉब्लम, ट्रांसपेरेंसी और पॉजिटिविटी ये आवश्यक है। और एक बात मैं आपको कहूंगा कि आपका निवेदन जो है वो तो जरूर हम लोग डिटेल में करेंगे, पर आप एमएसएमई को जो प्रॉब्लम हमारे सामने है उसमें थोड़ा सा वर्ल्ड सक्सेसफुल प्रैक्टिसेस फ्रॉम चाइना टू यूएस है, आप थोड़ा स्टडी करके उन्होंने किए हुए सिस्टम के आधार पर अगर आप हमको कुछ सुझाएंगे तो निश्चित रूप से हम दायरा बढ़ाना चाहते हैं। अभी हमने डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, एनबीएफसी को भी अलाउ किया है। ये एनबीएफसी को भी स्ट्रेंथन किया तो छोटे छोटे लोगों को ये भी बड़े प्रमाण पर फाइनेंस कर रहे हैं, ये कार लोन, ये लोन, छोटे लोन। फिर क्रेडिट सोसाइटी है, अब हमारे यहाँ महाराष्ट्र में क्रेडिट सोसाइटी जो है उनके पास 2.5 लाख रुपए का फंड है, 2.5 लाख करोड़। अब उसका कोई उपयोग नहीं होता। वो लोगों को अगर हमारे स्कीम में फाइनेंस कर सके तो वो भी कवर करने में अड़चने आई, क्योंकि उसके कानून आड़े आते हैं। तो आज हमको जनता विमुख, गरीब केंद्रित, फास्ट ट्रैक डिसीजन मेकिंग प्रोसेस और एमएसएमई को सही में सपोर्ट करके गतिशीलता लाने वाली अब सिस्टम चाहिए, और उसमें आप लोगों का मार्गदर्शन उपयोगी होगा। प्रेजेंट स्थिति में जो बातें आपने कही है, जो मैं अभी करीब 5 करोड़ लोगों तक मेरा इंटरेक्शन हुआ और मैं रोज अनेक सबको पहली बात तो मैं कहता हूँ पॉजिटिविटी रखिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस रखिए। निराशा, फ्रस्ट्रेशन, कुछ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम भी निर्माण हुए हैं, लोग बहुत हताश है, कोई बोलते मैं सुसाइड कर दूंगा। तो पहली बात संकट है और ये कोई नेचुरल वायरस नहीं है, ये आर्टिफिशियल वायरस है, इसलिए किसी को पता नहीं था इसका। तो इसके कारण अब स्वाभाविक रूप से ना उसका वैक्सीन भी बराबर मिला है, ना उसकी डिटेक्शन सिस्टम भी है। अच्छा, लॉकडाउन करे तो कितने दिन करे उसकी भी समस्या है। और इसलिए कोरोना के साथ जीने का आर्ट ऑफ लिविंग हमको स्वीकारना होगा और फिर आगे जाना होगा। इसको धीरे धीरे बातों को भी शुरू करना होगा। अदरवाइज माइग्रेंट लेबर लोग जा रहे हैं, रास्ते से पैदल जा रहे हैं, तो ये केवल लॉकडाउन करने से सब बंद करना, ये भी उसमें प्रॉब्लम है। और शुरू करेंगे तो कोरोना का स्प्रेड होगा, वो भी प्रॉब्लम है। तो निश्चित रूप से इस कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में मार्ग निकालते हुए सिस्टम को कैसे प्रभावित करें और ये ई गवर्नेंस बेस्ड ज्यादा कैसे करें। तो मैंने जैसे रोड सेफ्टी के लिए, ये जो मोटर व्हीकल एक्ट के लिए 6-7 देशों से वर्ल्ड बैंक के मदद से अध्ययन करके फिर एक्ट लाया। तो एमएसएमई में इसको सुधार करने के लिए आप जैसे एक्सपर्ट लोग ई गवर्नेंस बेस्ड एनालिसिस करने वाली सिस्टम बैंकिंग सिस्टम में कैसी हो और इसमें फास्ट ट्रैक डिसीजन मेकिंग प्रोसेस कैसा हो, और धीरे धीरे हमारी एमएसएमई का रेटिंग के आधार पर वो कैपिटल मार्केट में जाए। एनबीएफसी के द्वारा क्रेडिट सोसाइटी सबका फाइनेंस, उसका यूटिलाइजेशन छोटे आदमियों के विकास के लिए कैसे मिले। तो ये इसका थोड़ा सा ग्रास रूट ग्राउंड लेवल रियलिटी के आधार पर और केवल बुकिश कंसेप्ट के आधार पर नहीं चल सकता देश। प्रैक्टिकल और व्यवहारिक बातों के आधार पर भी इन सब बातों को हम कैसे करें, इसके बारे में आप लोग अच्छा सुझाव दे सकते हैं, क्योंकि आप अंतरंग को जानते हो और एग्जिस्टिंग स्थिति में आपने जो रिप्रेजेंटेशन हमको दिया है, जो सुझाव दिए, उसका जरूर हम अध्ययन करेंगे। और एक बात आई थी, मुझे फाइनेंस सेक्रेटरी कह रहे थे कि ये कारपोरेट अफेयर्स जो मिनिस्ट्री है, तो हम हर इंडस्ट्री को कहे कि जिनको पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग और इसको कि उसके बैलेंस शीट पर वो लिखे कि उन्होंने एमएसएमई का कितना पैसा देना है और कितने साल में दिया है। तो ये भी लिखने के बारे में कोई मैंडेटरी करे, ताकि इसके कारण भी लोग उस लिमिट में ये लायबिलिटी हटा देंगे, कर देंगे। तो ऐसा भी कोई आप उपाय सुझाव कि जिससे पैसे भी मिलेंगे। अच्छा, आज परिस्थिति ऐसी है कि समाधान पोर्टल के बाद कोई कानून करे कि भाई आपने पैसे नहीं तो कार्रवाई करेंगे, तो वो करने का भी आज समय नहीं है। इस समय पहले ही तकलीफ में सब लोग हैं।
ऑल स्टेक होल्डर्स की प्रॉब्लम है। राज्य सरकार के पास अगले महीना तनख्वाह देने की कमी है, भारत सरकार का रेवेन्यू ड्रॉप हुआ है, एमएसएमई को भी प्रॉब्लम है, वो भी कठिनाई से जा रही है। जो हमारे लेबर है, जो हमारे वो भी स्टेक होल्डर है, वो तो माइग्रेंट लेबर, वो सब उनकी हालत बहुत खराब है। सबको साथ लेकर किसी को भी हम फिसलेगा नहीं इसकी चिंता करते हुए, और सब आगे जाकर ये संकट पर मात करेंगे। पहले कोरोना की लड़ाई जीतेंगे और उसके साथ साथ इकोनॉमिक लड़ाई भी जीतेंगे। और ये जो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है, चाइना के प्रति जो एक प्रकार का हेट्रेट है, उसका एडवांटेज लेकर फिर से फॉरेन इन्वेस्टमेंट लाएंगे, अपग्रेडेशन ऑफ टेक्नोलॉजी करेंगे, एक्सपोर्ट को बढ़ाएंगे, इंपोर्ट को कम करेंगे, और हमारी इकोनॉमी को इस संकट से जाकर भी हम जो प्रधानमंत्री जी का कहना था कि हम 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाएंगे और 100 लाख करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे। अब रोड में तो मैंने तय किया, और पब्लिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन इन्वेस्टमेंट काफी हम ला सकते हैं। और आपको बताते हुए मुझे खुशी हो रही कि मैं पिछले 5 साल जब शिपिंग और पोर्ट्स का मंत्री था, तो मेरा बजट 800 करोड़ का था साल का, यानी 5 साल के पैसे हो गए 4000 करोड़। और हमने सागरमाला करके प्रोजेक्ट लिया हमारे 12 मेजर पोर्ट के लिए, और पोर्ट के स्ट्रेंथ पर हमने योजनाएं बनाकर किया। 6.5 लाख करोड़ के काम अवार्ड कर दिए, कुछ पूरे भी हुए, और आज हमारे पोर्ट सेक्टर का प्रॉफिट 7000 करोड़ हो गया। अभी रोड सेक्टर में मेरा बजट 1 लाख करोड़ का है, और मैं 2 साल में 15 लाख करोड़ के काम अवार्ड करना चाहता हूँ। और मैं फॉरेन फंड्स, इंश्योरेंस फंड, पेंशन फंड, बैंकों के बैंकेबल प्रोजेक्ट्स और एडीबी, वर्ल्ड बैंक, अब सबके फाइनेंस ला रहा हूँ। हमारा रेटिंग अच्छा है, एनएचआई का AAA रेटिंग है, फिर भी हमको पैसे लेने में अड़चन है। अब मुझे पता नहीं, आप लोग ऑब्जेक्शन ऑडिट करते हैं आपके सीएजी में, अब बाहर से सस्ता मिला तो ले नहीं सकते। तो ये इस प्रकार के पुराने सिस्टम में से बदलकर अब हमको फॉरेन इन्वेस्टमेंट कैसे मिलेगी, इसके बारे में भी आप लोगों को प्रोग्रेसिव रूप में सोचकर सरकार को सुझाना होगा। ये पुरानी जो बाबा आजम के जमाने की जो सिस्टम थी, वो स्क्रैप करने के लायक है, और उसको धीरे धीरे मॉडर्न सिस्टम के साथ जोड़कर, नए लिबरल इकोनॉमिक एटीट्यूड के साथ, ग्रोथ के साथ, एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल कैसे बढ़ेगा, उसके साथ जोड़कर हमको भविष्य के लिए विचार करना होगा। और मैं मानता हूं कि आप जब कॉस्ट अकाउंटिंग का भी काम करते हैं, तो निश्चित रूप से एक नया अल्टरनेटिव, नया पर्सपेक्टिव मॉडर्न इंडिया का, ये भी आपको देना पड़ेगा। अगर सब कुछ मॉडर्न हमने किया और आपने कॉस्ट अकाउंटेंट करने की आपकी पद्धति अगर पुरानी रखी, तो नया परिवर्तन होगा नहीं, फिर वही प्रॉब्लम आएंगे। तो मुझे लगता है कि दिस इज द टाइम फॉर कंट्री फॉर बिग इकोनॉमिक रिफॉर्म, and the role of you people particularly is very important.